One aspect where Vedantu teaching differed from a normal offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time, and they made learning a very fantastic experience for us. Hello everyone, कैसे हो आप सब लोग? And welcome to my class on definite integration. And बच्चों, today we are going to learn something very interesting, shortcut tricks. So today is my last class of definite integration, and today we will learn lots of shortcut tricks and we will solve lots of JEE problems, both mains and advanced problems today. So in 1 hour you will solve almost 10 problems of JEE mains and advanced level today, and you will learn to solve them just like that. Shortcut tricks. Okay बच्चों, चलो let us begin. And today I have some amazing surprises for you as well. So बच्चों, these are all my previous classes. जिन बच्चों ने मेरी previous classes attend नहीं किए हैं, the link of all these classes will be there in the description. So please attend my previous classes as well. Today we are doing art of solving definite integration problems through shortcut tricks. Okay, brief introduction about myself बच्चों. I am Pulkit. I did my BTech from IIT Roorkee, and welcome all the new students in my class. बच्चों, in my life I have taught tens and thousands of students. Before starting Vedantu, I started Lakshya Institute, and at Lakshya Institute we have produced many top ranks, including All India Rank 1 in IIT, All India Rank 1 in AIMS, KVPY Rank 1, and then I started Vedantu so that we can use technology to reach out to all awesome students like you. और बच्चों, इसीलिए I am taking classes on YouTube as well, ताकि आप सभी बच्चे पूरे इंडिया में जहाँ पे भी हो, आप सब पढ़ पाओ फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड अगर आपको, if you believe in my vision, then help me share these awesome classes with your friends as well. So do share on WhatsApp, Facebook, wherever you guys are, and do subscribe for all the awesome Vedantu classes by pressing on the bell icon as well. चलो आगे बढ़ते हैं without wasting time. So बच्चों, this is what we are going to do today. Shortcut tricks, and we will learn to solve problems like these. बच्चों, कुछ problems दिखा रहा हूँ जो आज हम solve करने वाले हैं. Problems like these, JEE Mains 2011. You will learn to solve it just like that in few seconds. Then problem JEE Mains 2015. Then JEE 2019. This problem which looks a bit complicated. You will also learn to solve this problem, JEE Advanced 2016. Again, you will realize you will be able to solve it with shortcut trick. And we will learn to solve problems like these, JEE Advanced 2019. And today, I am going to give you lots of home assignment problems as well. So, bachcho, are you geared up? Yes or no? I want to see yes or no. Are you geared up for problem solving today? Yes or no? Batao jaldi se. Yo or no, as Anand sir says. Yo, chalo bachcho, with lots of josh and energy, let us begin. Great to see all these yes. And bachcho, there is a surprise. So we are launching test series as well. In my class, as I go ahead, there is an amazing surprise about Vedantu's test series for you. Hang on, थोड़ी देर में बताता हूँ. So this is today's surprise. Everything will be available on Vedantu's Telegram group, जो आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल द डिस्कशन. एंड ये वेदांतु की क्लास की जो पूरी पीडीएफ है, ये आपको शेयर हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे. लिंक टेलीग्राम ग्रुप का इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो शेयर्ड ऑन वेदांतुज ऐप ऑन प्ले स्टोर. ठीक है, चलो बच्चों, दिस इज द फर्स्ट मेथड दैट आई विल बिगिन विथ. सो दिस इज द किंग्स रूल. रिमेंबर वी लर्न दिस प्रॉपर्टी, a to b fx is equal to integral a to b f of a plus b minus x. And I told you in my previous classes that majority problems of JEE will be solved using this, and there is a shortcut as well. आज हम discuss करेंगे. Today I'll discuss a shortcut which is DI method to solve problems जो कि by part से होती हैं. Using this you will solve them just like that. After that, 2 more shortcut methods. Let us begin. Let's solve the first very basic problem to start the class. This is JEE Mains 2017, right? And this problem is application of King's rule, and after that we will get into the shortcut trick. ठीक है, जल्दी से बताओ क्या करेंगे इसके अंदर. King's rule, just I have given you for quick revision. बच्चों क्या करते हैं हम, और what do we do?
वी स्टार्ट द प्रॉब्लम कैसे? सबसे पहले आप लिखते हो इंटीग्रल को एज इट इज, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल विच इज गिवन टू यू पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 4, राइट, dx अपॉन 1 प्लस cos x. In general, whenever the problem is a to b fx dx, always think, can I apply King's rule? This property, what does it say? बच्चों प्रॉपर्टी क्या बोलती है? प्रॉपर्टी says जो भी इंटीग्रल है, ठीक है, in that replace x by a plus b minus x. बच्चों what is a plus b? pi by 4 plus 3 pi by 4 बच्चों कितना होता है? pi by 2. So replace x by pi by this a plus b, that is pi by 2 minus x. ठीक है, again write a to b. Now what do we do? This is my original integration, but this integration is also equal to this integration which you have written using the property. What is the property बच्चों? Integral a to b fx dx is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx, right? फिर हम क्या करते हैं बच्चों? ये i और ये i, we add the two, which we add the two, right? बच्चों ये कितना हो जाएगा? सॉरी, पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 क्या हो गया? पाई, मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ सॉरी. सो बच्चों cos पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस cos x. So this is 1 plus cos x, this will be 1 minus cos x. Add the two, what will you get? This is a quick revision बच्चों. So what are you going to get? This is I, original integration. This is original integration बच्चों. Original integral using the King's property. X got replaced by a plus b which is pi. Sorry, my bad, मैंने pi by 2 बोल दिया था गलती से. Pi by 4 plus 3 pi by 4 pi minus x. And बच्चों what is cos pi minus x? Cos pi minus x कितना हो जाएगा? Minus of cos x. Original I that you get after applying the property लगाने के बाद जो I आया, दोनों को आप ऐड करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 2i is equal to 1 upon this plus 1 upon this, 1 upon 1 plus cos x plus 1 upon 1 minus cos x. ऐड करो, एलसीएम लेने पे आपका न्यूमरेटर तो बच्चों कितना हो जाएगा? 2. Your numerator will become 2, your denominator will become 1 plus cos into 1 minus cos, that is 1 minus cos square, that is sin square x, right? So 2 से 2 cancel because दोनों को जब ऐड किया था तो बच्चों क्या आया था? 2i. So 2 and 2 cancels out. 1 upon sin square is cosecant square. Cosecant square का integration everybody knows, it is minus cot. Put the limits, you get the answer 2. तो बच्चों ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल. यहां तक किसी को डाउट? Are you clear till here बच्चों? Yes or no? So that we can get into the shortcut. Yes or no? Is that clear? ठीक, तो ये तो हो गया अपना any question. फिर से बता रहा हूं बच्चों, whenever there is a question in definite integration a to b fx dx, first line of attack should be क्या इस पे King's rule लगेगा? I लिखो, I को वापस से लिखो by replacing x in the question by a plus b minus x. ऐड करके देखो, पक्के से कोई हिंट मिलेगा. बट मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टाइप डू नॉट रिक्वायर एनी कैलकुलेशन. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व नहीं करना है. यू नीड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज दिस इज अ शॉर्टकट विच विल गिव यू आंसर डायरेक्टली. दिस इज IIT 1994. बहुत पुराना और बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बट व्हाट विल यू डू? दिस बच्चों नोट करो. I have taught you in my previous classes. A quick revision बच्चों, note it. Whenever you have a question which is integral a to b, numerator में बच्चों there is a fx, denominator में there is a fx, and denominator में there is an f of a plus b minus x, then you need not solve this problem. After applying King's rule, answer always comes out to be b minus a by 2. रट लो इसको. Keep this in your mind. I will show you lots of problems जो कि जेई में आई है विच यू कैन सॉल्व डायरेक्टली बाय दिस. बच्चों नोट किया, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स. इफ दिस इज द फॉर्मेट, आंसर डायरेक्टली इज बी माइनस ए बाई 2. सो लेट्स गो एंड चेक द प्रीवियस प्रॉब्लम. सो लुक एट दिस प्रॉब्लम बच्चों. यहां पे क्या था? इफ लुक एट दिस, इफ दिस इज एफ ऑफ एक्स,
देन बच्चों दिस इज ऑल्सो एफ ऑफ एक्स, राइट। अब बच्चों ये क्या है, अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो ये है ए और ये है बी। 2 + 3 बच्चों क्या होगा, 2 + 3 is 5, then what is this written बच्चों, then this is written f of, if you replace x by a plus b minus x, that is 5 minus x, तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, it is nothing but a plus b minus x, f of x upon f of a plus b minus x plus f of x, need not solve it, directly आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, half of b minus a, that is 3 minus 2 by 2, that is आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, c। खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है। गॉट इट, क्लियर बच्चों, इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, अब देखो इसको अप्लाई करेंगे, देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर दिस विल बी अप्लाइड। नाउ लेट्स सी मोर प्रॉब्लम्स। हाँ बेटा बहुत टाइम है तुषार, यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू गेट अ रैंक इन जेई, डोंट वरी, पढ़ते जाओ। अब इस प्रॉब्लम को देखो, दिस इज जेई मेंस 2013, रीड द प्रॉब्लम, जेई मेंस 2013। रितम बसु, व्हाट इज रॉन्ग बेटा? देयर इज नथिंग रॉन्ग, चेक करो एक बार। मोहम्मद अरबाज विल सॉल्व मोर देन 10 प्रॉब्लम्स टुडे। न्यू क्रिएशन की कम, इधर आ जाओ। भूपिंदर, अरे देयर इज नथिंग टू प्रूव बेटा, एफ एक्स को लिखो आई के जैसे, मतलब क्वेश्चन को लिखो आई, अप्लाई द किंग्स रूल, अगेन राइट इट एज आई बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय ए प्लस बी माइनस एक्स, अपने आप आंसर बी माइनस ए बाई 2 आ जाएगा इफ द फॉर्मेट इज जो मैंने बताया। हाँ इस क्वेश्चन को देखो, दिस इज असर्शन रीजन प्रॉब्लम। क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1 है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, दिस इंटीग्रल, ये बोल रहा है इसका आंसर π/6 है कि नहीं, वी विल चेक। दूसरा ये बोल रहा है दिस स्टेटमेंट, हाँ ये स्टेटमेंट तो किंग्स रूल है, ये तो ट्रू है बच्चों, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दैट इज द किंग्स रूल। लुक एट द स्टेटमेंट 1, दैट इज ऑल यू नीड टू डू इज सॉल्व दिस इंटीग्रल। कैन यू राइट दिस इंटीग्रल एज आई इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, इंटीग्रल, आई थिंक बहुत बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी नाइस। सो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर जेई मेंस 2013 प्रॉब्लम। क्या मैं इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लिख दूं? कैन आई राइट tan एज साइन अपॉन कॉस? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? देखो ध्यान से इसको, आई कैन राइट इट लाइक दिस। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, इफ यू लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली, अगर ये है बच्चों एफ ऑफ एक्स, इफ दिस इज एफ ऑफ एक्स, तो बच्चों ये भी एफ ऑफ एक्स है, दिस इज ऑल्सो एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज a प्लस बी, π/6 प्लस π/3 बच्चों क्या होगा, व्हाट इज π/6 प्लस π/3, π/2। तो बच्चों क्या ये लिखा हुआ है, f ऑफ π/2 दैट इज a प्लस बी माइनस एक्स। ध्यान से देखो, अगर f ऑफ x है अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, तो बच्चों अंडर रूट ऑफ साइन एक्स क्या होगा, f ऑफ π/2 माइनस एक्स। अगर आप यहां पे x को रिप्लेस करोगे π/2 माइनस एक्स से, तो साइन आ जाएगा। अरे वाह, ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया, शॉर्टकट ट्रिक। सीधा आंसर बच्चों कितना आ जाएगा, आंसर विल बी हाफ ऑफ b माइनस ए दैट इज π/3 माइनस π/6। बच्चों कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2π/6 माइनस π/6 दैट इज π/6, बट एक बाहर हाफ है, तो एक्चुअली आंसर बच्चों क्या है, π/12। सो दिस इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 तो गलत है और स्टेटमेंट 2 तो सही है, तो आप देख लो आंसर क्या हो जाएगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, एनीबडी एनी डाउट? सो डू यू रियलाइज इफ यू कीप दिस शॉर्टकट ट्रिक इन योर माइंड, मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ जेई विल बी सॉल्व्ड जस्ट लाइक दैट। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes or no? Did you get it? Yes or no? Yes? So statement 1 is correct and statement 2 is false. So कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Answer is D. Answer is D. Yes. चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, ये किया मैंने, आंसर इज D. This is exactly what I did. Clear? चलो नाउ वी विल डू मैनी सच प्रॉब्लम। जिसको डाउट है अभी देखो फिर क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम। तो अभी तक हमने 2 प्रॉब्लम्स देखी जेई की विच यूज शॉर्टकट ट्रिक। लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम। लुक एट दिस, दिस इज जेई मेंस 2015, दिस इज जेई मेंस 2015। पढ़ो इसको जरा, रीड इट।
इंटीग्रेशन 2 से 4 log of x square log upon log x square log 36 minus 12x plus x square. I want your answer immediately. फटाक से आंसर दो, बिल्कुल इसको करने में 10 सेकंड लगना चाहिए, नॉट मोर देन दैट. ध्यान से देखो, पढ़ो इसको ध्यान से, क्या लिखा है ये. कैन यू राइट द सेम प्रॉब्लम एज, बच्चों देखना ध्यान से. कैन आई राइट इट एज इंटीग्रल 2 से 4 log of x square upon log of x square plus, बच्चों ये क्या लिखा है, 36 माइनस 12x प्लस x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. किसका होल स्क्वायर है ये? इट इज नथिंग बट 6, सॉरी log तो मैं खाई गया, log ऑफ 6 माइनस x का होल स्क्वायर. यस और नो? अरे प्रॉब्लम सॉल्व, वर्बल. अरे भाई मेहनत ही नहीं करनी, क्यों? क्या लिखा है ये? दिस इज योर एफ ऑफ एक्स. तो बच्चों ये भी क्या है? सेम एफ ऑफ एक्स. अगर ये एफ ऑफ एक्स है, अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं a प्लस बी, बच्चों व्हाट इज a प्लस बी? 6. अगर मैं रिप्लेस कर दूं एक्स को किससे? a प्लस बी माइनस एक्स से, तो क्या आएगा? अरे यही आ जाएगा. दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स. अगर आप यहां पे x को रिप्लेस कर दो a प्लस बी दैट इज 6 माइनस एक्स से, वो आ जाएगा. अरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स. आंसर क्या है? आंसर इज डायरेक्टली हाफ ऑफ b माइनस a. बच्चों कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 2, 2 बाई 2 1. खत्म प्रॉब्लम. लो, सो जेई की प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम्स 10-10 सेकंड की हैं. समझ में आया? यस की नहीं? समझ में आया? ठीक है. सो बच्चों बिल्कुल डरना नहीं है. जेई की प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल एंड दिस मेथड विल हेल्प यू लाइक क्रेजी. एक और करें? और करते हैं, चलो लेट्स डू वन मोर. सो बाय द वे मैंने प्रॉपर आपके लिए सॉल्व करके रखा है. यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस आफ्टर द क्लास ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये आपको वेदांतु की ऐप पे भी मिल जाएगा, वेदांतु ऐप ऑन प्ले स्टोर. ठीक, चलो अब इसके ऊपर आ जाओ. जेई मेंस 2011 स्लाइटली ट्रिकी बट आप कर लोगे. दिस इज जेई मेंस 2011. अच्छा बच्चों, इफ यू आर लाइकिंग इट, अगर आपको समझ में आ रहा है, डू प्रेस ऑन द लाइक बटन एज वेल. दैट इज माई फीडबैक. आफ्टर द क्लास आई कीप चेकिंग कि आप में कितने बच्चों ने लाइक किया है, बिकॉज दैट इज अ फीडबैक फॉर मी. सो इफ यू अंडरस्टैंड, डू प्रेस ऑन द लाइक बटन एज वेल. हाँ देखो इसको ध्यान से देखो. ये प्रीवियस प्रॉब्लम से थोड़ा सा ट्रिकी है बट आप कर लोगे. सो लॉट ऑफ यू आर सेइंग आंसर इज ए. सॉल्व दिस में ही होगा. मेनका सेज परितोष, टेलीग्राम का लिंक अगर आप कई बार जियो नेटवर्क से खोलोगे ना तो नहीं खुलेगा बेटा. सो जियो की जगह दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना और खुल जाएगा. हाँ इसको देखो यार, सबसे पहले तो मुझे इसमें एक चीज नहीं समझ में आ रही, वो ये देखना यार. पहले तो नहीं, ये एक्स मुझे दिक्कत दे रहा है. दिस एक्स इज ट्रबलिंग मी. मुझे लग रहा है यार एक्स को तो मैं हटा सकता हूं, क्योंकि हर जगह एक्स स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर. मैं सोच रहा हूं अगर एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दूं, सो दैट एक्स स्क्वायर इफ आई पुट इट टी, देन एक्स डी एक्स विल बिकम डी टी. प्रॉब्लम विल लुक स्लाइटली इजियर. तो मैं प्रॉब्लम को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं. बच्चों व्हाट डू आई डू? मैं सब्सटीट्यूशन कर रहा हूं. आई एम पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. इफ आई पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो बच्चों एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? इट विल बिकम डी टी बाई 2. 2x dx इज dt. तो x dx बच्चों कितना हो जाएगा? dt बाई 2. चलो तो यहां तो आ गया मेरा dt, बाहर आ गया मेरे पास एक हाफ, और x dx, ये x dx ये बच्चों कितना हो जाएगा? dt. वो तो गया, बचा कितना? sin t अपॉन sin t प्लस साइन ऑफ log 6, साइन ऑफ log 6 ln 6 माइनस टी. एग्री? यहां तक आ गया सबका? यहां तक आ गया. बट बच्चों लिमिट्स विल चेंज.
लिमिट्स चेंज हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो लिमिट्स विल चेंज। बच्चों ये वाली लिमिट किसकी है? ये लिमिट है एक्स की। दिस इज द लिमिट ऑफ एक्स। व्हेन यू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन दिस इज x1 से दिस इज x1 सॉरी, एंड दिस इज योर x2। मतलब x की वैल्यू चेंज हो रही है रूट log 2 से रूट ऑफ log 3। बट नाउ यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। व्हेनेवर यू डू सब्स्टिट्यूशन, बच्चों लिमिट्स जरूर से चेंज करना, गलती हो जाएगी। तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी बच्चों? व्हेन x की वैल्यू इज रूट ऑफ log 2, तो बच्चों t कितना हो जाएगा? व्हाट इज t? t तो x का स्क्वायर है, t is the x का स्क्वायर। So if x is root of log 2, then the corresponding value of t, जो कि x का स्क्वायर है, will be what बच्चों? log 2। एंड अगर x की वैल्यू है रूट log 3, तो बच्चों t कितना हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग? दैट विल बी log of 3। बड़ी अच्छी बात है। तो ये बन गया मेरा प्रॉब्लम। अरे बट ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया, प्रॉब्लम सॉल्व। ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। बच्चों कैसे? देखना ध्यान से। अगर ये लिखा है आपके पास f of t, इफ दिस इज f of t, तो नीचे भी लिखा हुआ है f of t। और ये बच्चों क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो, log a plus b। what is log 2 plus log 3? what is log 2 plus log 3? बच्चों कितना हो जाएगा? log 6। log a plus log b is log of a into b, log of a into b। log a plus log b is log 6। so a plus b log 6 minus t। यस की नो? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? f of a plus b minus t। so f of t, f of t, f of a plus b minus t, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। आंसर वर्बल है, तो आंसर बच्चों कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ b माइनस a। बट डोंट फॉरगेट दिस हाफ, बाहर भी एक हाफ रखा हुआ था पहले से। देयर वाज अ हाफ आउटसाइड एज वेल, सो देयर इज अ हाफ वन मोर। तो आंसर बच्चों कितना हो जाएगा? b माइनस a log 3 माइनस log 2 by 4। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। यस कि नो? तो क्या हो गया? मैंने देखो प्रॉपर्ली आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, ये रहा। सो दिस इज योर इंटीग्रल आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन। दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो आपका बच्चों कितना आ गया? आंसर आ गया हाफ ऑफ, सॉरी 1/4 ऑफ log 3 माइनस log 2। सो log 3 माइनस log 2 बच्चों कितना हो जाएगा? log of 3/2। 1/4 log of 3/2। सो बच्चों योर आंसर इज, कहाँ गया? सॉरी कहाँ गया? 1/4 log of 3/2 a, जो आपने बोला था, a इज योर आंसर। क्लियर? समझ में आया? रितम एक बार रिवाइज करो बेटा। व्हाट हैपेंड इन द लास्ट स्टेप? आई डायरेक्टली यूज अवर शॉर्टकट ट्रिक। इज दैट क्लियर? अब पढ़ेंगे दूसरा शॉर्टकट ट्रिक। आर यू रेडी फॉर अनदर शॉर्टकट ट्रिक? यस और नो? आर यू रेडी? यस और नो? जल्दी 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 बताओ भाई, यस और नो? यस, ऑसम। चलो आगे बढ़ते हैं। My another shortcut trick बच्चों is to solve problems like these very fast without any calculation. There are problems where the simple, say x into exponential function, algebraic exponential, algebraic trigonometric, these are the integrals where what do you require? By parts. You require by parts. Remember? Isolate. Remember that rule? ठीक है, but such problems can be solved with a shortcut trick as well. We call it DI method. So I will come to the DI method. ठीक है, but before that, my surprise for you बच्चों. So we are launching the ultimate JEE and NEET 2020-21 test series. ठीक है, जिसके अंदर lots of question wise test analysis, 5000 plus unique questions designed by Anand sir, who has taught almost like hundreds of top 100 rankers in JEE, right? So this test series, which is typically for 5000, but in today's class, if you are attending today's class, you can get it for 1000 rupees. Tons of tests, lots of tests. This is the link बच्चों, vdnt.in/test. You can click on this link, or this link is also available in the description. अभी नोट कर लो, क्लास के बाद में जाके देख लेना. Today you can just for 1000 rupees get the entire test series for the entire year, right? So lots of other things also coming up.
सो https:/vdnt.in/test, आप इसको नोट कर लेना, क्लास के बाद में आप खोल के देख लेना. It is also available in the description. आगे बढ़े. So this is the amazing test series for you guys. This was my surprise. But now let's come to the shortcut tricks. अच्छा, बाय द वे बच्चों, वेदांतु पे लॉन्ग टर्म पूरे कोर्सेज भी होते हैं. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं. दीज आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज वेयर ऑलमोस्ट डेली 4 hours of classes happen. Lots of material, booklets, tests, analysis, everything happens, and lots of students have got amazing ranks. So 10 students got ranks in top 1000 ranks in JEE this year from Vedantu long term courses. Anyways, you can hear about their success stories on YouTube channel of Vedantu, जहाँ पे आप हो अभी. So you can just search for Vedantu success stories. You can hear them out, how these students achieved these top 1000 and top 100 ranks. Anyways, आ जाओ बच्चों, shortcut trick. We call it DI method. Now let me explain this method to you. देखो ध्यान से. Let me explain this method to you. Imagine करो आपको इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन x e raised to power x dx. ध्यान से सुनना. Listen to me very carefully now. ठीक है? This question is typically done by parts. I am telling you a shortcut trick here. So what is the shortcut trick बच्चों? Remember अपना IIT. This was used to find which function to be taken as first function, which is the second function, right? So आप इस फंक्शन को लेते हो हमेशा क्या? आप इसको लेते हो फर्स्ट फंक्शन, आप इसको लेते हो सेकंड फंक्शन. IIT ही बोलते हैं, ऐसे ही होता है. Algebraic and exponential. Agree? So this is first function, this is second function. और आप बाय पार्ट्स लगाते हो, राइट? नाउ आप ध्यान से सुनना. आप क्या करो, दिमाग में एक टेबल बनाओ. जस्ट मेक अ टेबल इन योर माइंड. ठीक है? अंचन, सुनील, यस आई टुक योर नेम. हाँ, जस्ट मेक अ टेबल लाइक दिस. नाउ जिस फंक्शन को आपको फर्स्ट फंक्शन लेना था, द फंक्शन फर्स्ट फंक्शन क्या होता है बच्चों, जिसको आप डिफरेंशिएट करते हो इन बाय पार्ट्स. रिमेंबर, आप क्या करो, इन द टेबल इसमें एक नाम दो d, एक नाम दो i. d स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, i स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन. ठीक? अब क्या करो, आप जिस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना चाहते हो ना, कीप इट हियर. एंड जिसको आप सेकंड फंक्शन लेना चाहते हो, कीप इट हियर. अंडर द d कॉलम पुट, ये सब वर्बली हो जाएगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू अ टेबल वाला टेक्निक. आफ्टर दैट विल लर्न टू डू इट वर्बली एज वेल. ठीक है? थ्रू दिस मेथड क्या करो, फर्स्ट फंक्शन जिसको आपको फर्स्ट फंक्शन लेना था इन बाय पार्ट्स, पुट इट अंडर द कॉलम डी. एंड पुट द सेकंड फंक्शन जिसको आपको सेकंड फंक्शन लेना था, पुट इट अंडर द कॉलम आई. नाउ कीप डिफरेंशिएटिंग. एक्स को डिफरेंशिएट करो 1 1, 1 को डिफरेंशिएट करो 0. कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक जाओ वहां पे. वेयर इट कम्स 0, स्टॉप देयर. नाउ यहां पे बच्चों क्या करो, इंटीग्रेट. ई रेज पर एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेज पर एक्स, ई रेज पर एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेज पर एक्स. राइट? आंसर क्या हो गया, ये रहा आंसर. एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके नीचे वाले कॉलम से. आंसर इज एक्स, इसको देखो, एक्स ई रेज टू पावर एक्स एंड देन 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई. एक्स ई रेज पावर एक्स इज योर फर्स्ट टर्म, योर सेकंड टर्म इज 1 इंटू ई रेज पावर एक्स. राइट? पहले वाले के आगे लगाओ प्लस साइन, दूसरे वाले के आगे लगाओ माइनस साइन. दैट इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. डायरेक्टली दिस इज योर आंसर. एक्स ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर एक्स प्लस सी इज योर आंसर. गॉट इट? चलो अब मैं फिर से लेता हूं. आयेश गुप्ता, सार्थक चौधरी, सुशांत गेमिंग, समझ में आया थोड़ा बहुत? चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको. लेट मी हेल्प यू विथ अनदर एग्जांपल. दिस, ये क्वेश्चन वैसे तो आपको ये याद ही होता है, यू ऑलरेडी रिमेंबर इट. ठीक है? बट स्टिल जस्ट टू टेल यू अ मेथड, आई एम यूजिंग दिस एग्जांपल. ठीक? नाउ लेट अस डू अ सिमिलर एग्जांपल. से एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स. मान लो आपको एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स करना है. ठीक है? नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू डू इट. एक्स स्क्वायर ई रेज पावर एक्स यूजिंग दिस मेथड. कैसे करेंगे देखना ध्यान से. सबसे पहले कॉलम बनाओ. फर्स्ट मेक अ कॉलम, देयर इज डी एंड देयर इज आई. ठीक? नाउ जिसको आपको फर्स्ट फंक्शन लेना था, व्हेन algebraic and exponential function is there, of course this is your first function, of course this is your second function. right? Now let's see how to do it verbally. फटाफट करेंगे. सबसे पहले लिखो एक्स स्क्वायर और ई रेज पर एक्स. फर्स्ट फंक्शन वाले की जगह एक्स स्क्वायर, डी के अंदर एक्स स्क्वायर, आई के अंदर ई की पावर एक्स. नाउ कीप डिफरेंशिएटिंग. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x,
2x का डिफरेंशिएशन 2, स्टॉप। जैसे ही कांस्टेंट आता है स्टॉप। नाउ e की पावर x का इंटीग्रेशन e रेज पावर x, e रेज पावर x का इंटीग्रेशन e रेज पावर x, स्टॉप। नाउ आंसर इज x स्क्वायर e रेज पावर x, 2x e रेज पावर x प्लस वापिस इंटीग्रेट करो e रेज पावर x, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये हो गया आपका लास्ट टर्म। सो आंसर इज x स्क्वायर e रेज पावर x, उसके बाद दूसरा टर्म 2x e रेज पावर x, तीसरा टर्म 2 e रेज पावर x। साइन बच्चों कैसे लगाओगे? प्लस माइनस प्लस, आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर। नाउ आई कुड हैव एक्चुअली डन इट वर्बली एज वेल, आई कुड हैव डन इट वर्बली एज वेल। मैं ये टेबल वेबल नहीं बनाता, मैं माइंड में कर लेता हूं। कैसे? देखना, सबसे पहले लिखो फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी टर्म लिखो एज इट इज ई रेज पावर एक्स। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करते जाओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, e की पावर x को इंटीग्रेट करते जाओ, ई रेज पावर x, इंटीग्रेट कर दो ई रेज पावर x, माइनस प्लस इज योर आंसर। डायरेक्टली खत्म, खत्म। गॉट इट? समझ में आया? इसको कर दूं वर्बली ऐसे ही, इसको वर्बली करें। नाउ लेट्स लर्न टू डू दिस वर्बली। फिर से दिखाता हूं मैं, देखना। नाउ x साइन x, ये तो हो गया, चलो ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, राइट। नाउ x साइन x करें, अब मैं वर्बली करता हूं इसको, देखना कैसे। ये टेबल से कर रखा है, नाउ लेट मी डू इट वर्बली फॉर यू। कहां गया? हाँ, x साइन x वर्बली करें। सबसे पहले क्या करो बच्चों, सुनना ध्यान से। फर्स्ट टर्म एज इट इज, जिसको फर्स्ट टर्म लेना चाहते थे, आई लेट के अंदर, आई लेट, फर्स्ट टर्म एल्जेब्रिक, सेकेंड टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख दो एज इट इज x एज इट इज, x एज इट इज फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन लिखो यहां पे साथ में, ठीक है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन लिखो, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। अब एक एक करके करते जाओ, डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट। सो x का डिफरेंशिएशन 1 एंड cos x माइनस cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x, खत्म। रुक जाओ, दैट्स योर आंसर, प्लस माइनस, यू गेट द आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। x माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दैट्स इट। समझ में आया? किया मैंने कुछ, बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक लाइन में हो गया। आई विल यूज दिस इन जेई एडवांस प्रॉब्लम टुडे। एक जेई एडवांस की प्रॉब्लम करेंगे, उसके अंदर देखेंगे ये कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज यूज्ड फॉर वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टेबल से करना था तो मैंने टेबल से करके दिखा रखा है आपको, ठीक है। क्लियर? अभिराम दारा बेटा, व्हाट्स योर डाउट? क्लियर? समझ में आया? देन डू प्रेस ऑन द लाइक बटन। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड in between I will use this method in a problem solving of JEE problem, ठीक है। चलो let's move ahead। सोचो ये था आपका DI method, a shortcut। Now before I go ahead, another very important aspect for JEE problems is the concept of even and odd, ठीक है बच्चों, concept of even and odd। I took an entire class on this, but today I'll just revise it and take lots of JEE problems based on this। बच्चों एक फंदा क्या था यहाँ पे, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी प्रॉब्लम है -a to a f(x) dx in JEE, listen to me very carefully, any problem in JEE which is from -a to a f(x) dx, guaranteed that problem will use concept of even and odd, पक्का, ठीक है। एक केस में दूसरी चीज होती है, वो भी मैं कराऊंगा आज, बट 99% केसेस में प्रॉब्लम ऑफ -a to a इज गारंटीड अ प्रॉब्लम ऑफ इवन एंड ऑड। एंड व्हाट डिड वी लर्न बच्चों? वी लर्न दैट अगर f of x ऑड फंक्शन है, इफ f of x इज ऑड, ठीक है, देन आंसर बिकम्स 0 इफ f of x इज ऑड, राइट, एंड आंसर बिकम्स 2 times इंटीग्रल 0 to a। अगर f of x बच्चों क्या होता है? इवन।
मैंने आपको ग्राफ से बताया था इन माई प्रीवियस क्लासेस, डू यू रिमेंबर? आई टॉट यू ग्राफिकली एज वेल। ग्राफ से बताया था मैंने आपको, क्या बताया था मैंने आपको ग्राफ से? ऑड फंक्शन का ग्राफ बच्चों कैसा होता है? द ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज लाइक दिस। सो व्हेन यू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस ए टू ए, इसका इंटीग्रल विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, इसका इंटीग्रल विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, बोथ वैल्यूज का मैग्नीट्यूड इज सेम, सो इफ इट्स वैल्यू इज सेम, इंटीग्रल माइनस ए टू 0 is say -5, then integral 0 to a will be +5, -5 plus 5 will give you 0 if the function is odd. Odd क्या होता है? When f of minus x is minus of fx, this function is odd, right? और even function क्या होता है बच्चों? f of minus x is fx. ये सबको आता है? All of you remember this? Yes? Should we get into problem solving? Yes or no? बच्चों याद है कि नहीं है ये? Yes or no? जल्दी बताओ। This we already had done, right? Problem solving करें इसके ऊपर? प्रेरित सिंह, don't worry, join in, no worry. चलो, many of you remember it, very nice. अरे बेटा आतिफ सैयद, there is no need to remember. In my class, you don't need to remember anything. Everything is a concept. No need to remember. Look at this problem बच्चों. Look at this problem. JEE 2012. Awesome. Lot of you remember it. Very nice. So आ जाओ फिर बच्चों करते हैं solve. This problem के अंदर एक शॉर्टकट ट्रिक भी यूज होने वाला है, विल सी, देखना। वी आर गोइंग टू यूज अ शॉर्टकट ट्रिक एज वेल इन दिस प्रॉब्लम। त्रिशा दौका, हाई टू यू एज वेल। हाँ देखा मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम क्या है? माइनस ए टू ए -π/2 से π/2 x² प्लस लॉग पाई माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स। पक्का इसमें क्या यूज होने वाला है? इवन एंड ऑड, गारंटीड। कैसे यूज होगा बच्चों? देखते हैं ध्यान से। कैन आई राइट दिस प्रॉब्लम एज इंटीग्रल -π/2 से π/2? कैन आई ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स? x², कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लस इंटीग्रल -π/2 से π/2। दूसरा बच्चों क्या आएगा? लॉग ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स, राइट? आई ब्रोक इट इनटू टू पार्ट्स। ध्यान से देखो बच्चों, ये तो इवन है, नो प्रॉब्लम अबाउट दिस फंक्शन इज डेफिनेटली, ये तो इवन है, दिस इज इवन। लेट अस फोकस अवर अटेंशन ऑन दिस, लेट अस फोकस अवर अटेंशन ऑन दिस। मैं इसको बोलता हूं एफ ऑफ एक्स, लेट्स कॉल इट एफ ऑफ एक्स। हाउ डू यू चेक इफ अ फंक्शन इज इवन और ऑड बच्चों? जब भी चेक करना इवन एंड ऑड है, स्टार्ट बाय सेइंग दैट फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स। फिर क्या करेंगे हम? अगर वो एफ ऑफ एक्स है तो क्या करते हैं? सो एफ ऑफ एक्स लिखो, सो एफ ऑफ एक्स इज दिस, राइट? सो यू स्टार्ट विथ राइटिंग एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स। स्टार्ट बाय राइटिंग एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब जहां जहां पे एक्स था, wherever there was x, replace that by minus x. Yes, lot of you are correct. क्या किया मैंने? अच्छा मैंने cos x को खा गया मैं, कोई बात नहीं, cos x भी आ जाएगा, no worries. There was a cos x as well, don't worry. तो यहां पे भी cos x आ जाएगा, मैं उसको खा गया, my bad, I ate it. हाँ, f of minus x बच्चों कितना हो जाएगा? log of pi minus x, but replacing x by minus, it will become plus x. So pi plus x upon pi, replace x by minus x, pi minus x. But ऊपर आ गया pi plus x, नीचे आ गया pi minus x. Can I interchange numerator and denominator? Yes, you can. तो बच्चों कितना हो जाएगा? Minus log, using the property log of a upon b is same as saying minus of log of b upon a. सबको पता है? All of you know this. Log a upon b is minus times log of b upon a. If I interchange numerator and denominator, a minus sign comes out. तो ये बच्चों क्या हो गया? But this is f of x, but there is a minus sign, so minus f of x. So f of minus x came out to be minus fx. It means this is odd. तो बच्चों ये तो odd हो गया, ये odd हो गया. It is getting multiplied by cos, which is even. Do you remember cos is even?
बिकॉज कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, साइन होता है साइन एक्स इज ऑड, कॉस एक्स इज इवन, बट ऑड इंटू इवन, बच्चों रिमेंबर ऑड इंटू इवन इज ऑलवेज ऑड, ऑड इंटू इवन इज ऑलवेज ऑड. ये सारी चीजें बिल्कुल वर्बली करनी चाहिए, दो आई एम स्पेंडिंग टाइम इन डूइंग दिस, बट एट योर लेवल यू शुड बी डूइंग दिस थिंग्स वर्बली. ये आपको फटाफट हो जाना चाहिए. सो माइनस ए टू ए ऑड फंक्शन जीरो, बच्चों ये तो जीरो हो गया, उड़ गया, ये तो बचा कितना एक्स स्क्वायर कॉस एक्स. तो बचा कितना आपके पास, लेट मी क्विकली रिवाइज दैट फॉर यू. सो व्हाट डिड वी लर्न, वी लर्न दैट दिस becomes minus pi by 2 से pi by 2 x square cos x into log pi minus x upon pi plus x, odd even net function odd, minus a to a odd is 0. so आपका क्वेश्चन केवल कन्वर्ट हो गया इसके अंदर. so what you are left with is, what you are left with बच्चों is this. अब देखो इसका आंसर कैसा आया. अब ये है यहां पे ट्रिक. so आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, this is what you are left with because this has become 0. राइट. अब देखना ध्यान से, कैन यू यूज अ शॉर्टकट ट्रिक. नाउ माइनस ए टू ए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, दिस एंटायर थिंग इज इवन, दिस एंटायर थिंग इज इवन. वाई, एक्स स्क्वायर भी इवन है, कॉस भी इवन है. कैन आई राइट इट एज 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स. कैन आई राइट इट 0 से पाई बाई 2 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस ए टू ए 2 टाइम्स 0 टू ए. यस. नाउ can you apply the DI method shortcut trick, can you apply the DI method shortcut trick here. क्योंकि इसको अदरवाइज बच्चों सॉल्व करोगे you will have to use by parts, but now you can solve this using DI method. yes, कैसे करें देखो, वर्बली करता हूं मैं, let me do it verbally. 2 outside, first function second function, first second, फर्स्ट राइट एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन राइट इट, cos x का इंटीग्रेशन साइन. नाउ एक एक करके नाउ इसको करते जाएंगे डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, 2x हो जाएगा 2, राइट. एंड साइन को करेंगे इंटीग्रेट, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों कितना, माइनस कॉस, एंड माइनस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों कितना, माइनस साइन, राइट, अंडर द लिमिट. बट अब साइन कैसे चेंज करेंगे, हाउ डू वी चेंज द साइन, हाउ डू आई चेंज द साइन, प्लस माइनस प्लस, दैट इज योर आंसर. अंडर द लिमिट्स, अंडर द लिमिट्स 0 से पाई बाई 2, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा. सुपर, वर्बली कर दिया मैंने, लो हटाओ. कोई दूसरा करने जाएगा उसको बेचारे को करना पड़ेगा पूरा बाय पार्ट्स. यस और नो. सो द मजा आया कि नहीं आया, कुड यू गेट इट, कुड यू गेट इट, यस और नो. ठीक है, ऑसम, समझ में आया तो डू प्रेस ऑन द लाइक बटन एज वेल. ठीक है. सो अदरवाइज बच्चों सॉल्व करते तो क्या करते आप, अदरवाइज आप करते बाय पार्ट्स. दिस इज बाय पार्ट्स. बाय पार्ट्स में आपको 2 बार करना पड़ता. कितने स्टेप्स है टू सॉल्व इट बाय पार्ट्स, एक बार बाय पार्ट्स लगाओगे फिर 2x sin x आ जाएगा, फिर उसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाओगे, फिर ये आंसर आएगा. बट यू कुड हैव डन इट डायरेक्टली यूजिंग द DI मेथड विच आई जस्ट टॉट यू. दिस इज द DI मेथड. ठीक है. क्या किया अपन ने, एक्स स्क्वायर अंडर द डी एंड cos x अंडर द आई, कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग, एक्स स्क्वायर 2x 2 cos x sin x माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन कॉस इंटीग्रेशन साइन, साइन इंटीग्रेशन माइनस कॉस इंटीग्रेशन माइनस साइन. ठीक है. एंड सॉर्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई विथ प्लस माइनस साइंस, बट आई डू इट वर्बली. सेम मेथड, एक्स स्क्वायर कीप एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x डिफरेंशिएशन 2, स्टॉप, साइन, सॉरी डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, 2x डिफरेंशिएशन 2, cos x का इंटीग्रेशन साइन, साइन इंटीग्रेशन माइनस कॉस इंटीग्रेशन माइनस साइन. ठीक है. दैट इज योर आंसर. खत्म. कूल. चलो आगे बढ़ जाओ भगवान का नाम लेके. अब आ जाओ इसके ऊपर. JEE 2019, आर यू रेडी,
जेई 2019 करोगे खुद से? करो करो। जेई 2019 hint is it is again extremely short 15 seconds problem. नहीं भानु प्रताप, देन इट वोंट बी। भानु प्रताप फिर नहीं होगा बेटा, फिर क्या हो जाएगा? वो इवन हो जाएगा। भानु प्रताप, टू योर क्वेश्चन, इट विल बी इवन। यस, वीडियो विल बी सेव्ड बेटा। विशाल द ब्लिस्ड वन, यस द वीडियो विल बी सेव्ड ऑन द यूट्यूब, डोंट वरी। हाँ, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है भाई, आंसर तो दो। कोई आंसर आ गया? ए। यस, आंसर इज ए। किस किसने दिया है? अंकित, साहिल, आयुष, रुपायन। यस, यू आर राइट। कैसे? अरे बहुत आसान है। देखो क्या करना है इसके अंदर। कहां गया ये रहा। जेई 2019 अभी का सवाल है, पिछले साल का। ये बोलता है मुझे चाहिए जी ऑफ एफ एक्स, राइट। बट मैंने क्या बोला? अगर क्वेश्चन, अरे आजा भाई, अगर क्वेश्चन, इफ द क्वेश्चन इज -a to a, guaranteed the problem is of odd or even. चलो व्हाट इज g of f of x निकालते हैं। व्हाट इज g of f of x? g of f of x will be, कहां है भैया g तो है log। log के अंदर क्या है? in the place of x, this is composite function, we call it composite function। g of x is log of x। if you replace x by f of x, तो बच्चों कितना आ जाएगा? log of f of x। g of x log x, g of f of x log of f of x। अब भैया f of x क्या है? ये रहा, दिस इज log of 2 minus x cos x upon 2 plus x cos x। ठीक है, दिस इज योर g of f of x। ठीक है, कोई नाम दे दे इसको फॉर योर क्लैरिटी। लेट मी कॉल इट f of x, कैपिटल f x। तो बच्चों व्हाट इज f of minus x? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू चेक इफ इट इज इवन और ऑड। इफ इट इज इवन और ऑड, f of minus x बच्चों कितना हो जाएगा? log of, देखो बच्चों cos of minus x कितना होता है? सबको पता है? cos of minus x is cos x because cos is even। ये क्या लिखा है? अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूं x को माइनस एक्स से, बच्चों ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस, बिकॉज cos ऑफ माइनस एक्स तो cos ही रहेगा, और ये x माइनस एक्स से वजह से प्लस हो जाएगा, सो इट विल बिकम 2 प्लस एक्स cos x एंड डिनोमिनेटर विल बिकम 2 माइनस एक्स cos x। बट आई कैन देन इंटरचेंज, मैं देख रहा हूं इसको इंटरचेंज कर दूं, सो इट विल बिकम व्हाट? माइनस टाइम्स log ऑफ 2 minus x cos x 2 plus x cos x, right? So f of minus x is minus times, बच्चों ये क्या है? This is nothing but f of x, this is minus times f of x। So f of minus x बच्चों आ गया minus of f x। इसका मतलब बच्चों ये फंक्शन क्या है? It means this function is what? Odd। It implies what? It implies what? It implies that this function is odd। if this function is odd, then integral -a to a of this function का integration is बच्चों going to be a big anda, 0। answer is 0। which one is the 0? log 1 is 0। याद है? भूल गए? what is log 1? आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 0। and 0 is nothing but log 1, because log of 1 to any base, कुछ भी बेस लगा लो जो मन में आए, it is 0। yes, गली बॉय, टाइम आएगा, तुम्हारा टाइम भी आएगा। यस कि नहीं? कुछ करना था इस प्रॉब्लम में। जेई 2019, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विल यू बी एबल टू सॉल्व जेई प्रॉब्लम्स और नॉट? यस और नो? आर यू रेडी टू सॉल्व सम जेई एडवांस प्रॉब्लम्स नाउ? जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स करनी है? यस और नो? चलो आ जाओ, जेई एडवांस करेंगे फिर।
उससे पहले एक और शॉर्टकट, वन मोर शॉर्टकट बच्चों, करना है एक और शॉर्टकट, वन मोर शॉर्टकट। चलो, दिस इज माई फेवरेट शॉर्टकट। जब मैं छोटा बच्चा था, लाइक यू, आई यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद दिस एज माई शॉर्टकट। बच्चों, ग्राफ है मेरा सबसे बड़ा दोस्त, ठीक है। आई यूज ग्राफ टू सॉल्व एनी रैंडम प्रॉब्लम. So I'll teach you a method where you can imagine and visualize an integral graphically and get the answer just like that. करें, आ जाओ, चलो. Now this is my next shortcut, that is graphical method. Now this is JEE 2004. I have taken a problem for you just to explain this method. This is a problem. Look at it, read it, and if I tell you the answer is verbal, I'll tell you answer is verbal. बताऊं कैसे? पढ़ो जरा इसको एक बार. Let me give you 1 minute to try it out. But is mathematics difficult? लग रहा है कुछ difficult? मस्त है यार, easy है, टेंशन नहीं लेना लाइफ में, सब हो जाता है. Don't take any tension in life. Now the question is 0 to 1, और जो मैं मेथड बताऊंगा you will laugh at me. 0 to 1 under root of 1 minus x upon 1 plus x. ठीक है, देखो अब देखते हैं. मेथड सुनना मेरा. मैं बोलता हूं ये फंक्शन है, देखना ध्यान से. दिस इज माय फंक्शन, इसको हटाते हैं. ये फंक्शन है ना मेरा, दिस फंक्शन, दिस इज एफ ऑफ एक्स. आई लेट मी विजुअलाइज इट्स ग्राफ बिटवीन 0 to 1. लेट मी विजुअलाइज इट ग्राफ बिटवीन 0 to 1. देखना ध्यान से. बच्चों बताओ इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 0? बताओ जरा. What is the value of this function at 0? What is the value of this function at 0? 1. जब मैं 0 पुट करता हूँ x को, आंसर कितना आता है बच्चों? 1 आता है. बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, अच्छा लगा. What is the value of the function at x equal to 1? What is the value of the function at x equal to 1? x को 1 पुट करो बच्चों. d क्या आएगा? 1 पुट करो, 0. मतलब मेरा ग्राफ यहां पे से यहां के बीच में आएगा. अप्रोक्सीमेट. अब देखना मैं मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करता हूं. मान लो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसे ही कुछ ग्राफ होगा. इट इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ. सो 0 पे इट्स वैल्यू इज 1 एंड 1 पे इट्स वैल्यू इज 0. नाउ अब एरिया, व्हाट इज द इंटीग्रेशन बच्चों बिटवीन 0 to 1? इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द ग्राफ, बिकॉज द ग्राफ इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस. इसका मतलब बच्चों मुझे क्या करना है? माई आंसर, देखना मैं क्या करता हूं. माई आंसर इज एरिया ऑफ दिस ग्राफ. कैन यू अप्रोक्सीमेट द एरिया ऑफ दिस ग्राफ? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ दिस ग्राफ? कितना है? कैन यू इमेजिन दिस एज अ ट्राइंगल? अप्रोक्सीमेटली कैन यू इमेजिन दिस एज अ ट्राइंगल? अगर ये ट्राइंगल होता तो बच्चों इसका एरिया कितना होता? हाफ इंटू 1 इंटू 1. अप्रोक्सीमेट एरिया इज हाफ इंटू 1 इंटू 1. मतलब बच्चों मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए हाफ. देखो जरा ऑप्शंस को, ऑप्शन को देखो जरा. विच ऑप्शन इज नियर टू हाफ? भैया ये तो नहीं है. दिस इज नॉट द आंसर. नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज द ग्राफ इज अंडर रूट. अंडर रूट इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, बिकॉज अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव. इफ द ग्राफ इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, आंसर कैन नेवर बी नेगेटिव. तो भैया ये तो गलत है. अब इसको देख लो, π/2 + 1. अरे भाई कहां से? 1 + π/2. मेरे को तो चाहिए नियर टू हाफ. π/2 - 1, π/2 कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 3/2, 1.5, 1.5 - 1, ऑलमोस्ट 0.5. दिस इज द आंसर. ये लो, हो गया खत्म सवाल. हो गया कि नहीं हो गया? यस कि नो? समझ में आया? यस और नो? Could you appreciate the method? So this was my favorite method when I was a child like you, when I was a kid like you. मैं आधे सवाल में ऐसे मेथड लगाता था. ठीक है? So that is why I always teach. If you go through my classes, my emphasis on graph is extremely high. बच्चों ग्राफिकल तरीके से पढ़ो. ग्राफिकल तरीके से पढ़ोगे, हर चीज विजुअलाइज हो जाएगी, सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा. समझ में आया? ठीक है. हाँ, ऊपर से चला जाए. कोई पूछ रहा है ग्राफ ऊपर से नहीं जा सकता. अरे जाने दो जानवी, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं.
आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, राइट? हाँ, so this is the same explanation. Anyways, now let us do a अगर आप इसको proper method से करते तो this was the proper method, but क्यों करें जब मैं ऐसे ही visualize कर लेता हूं? तो I have done the proper method for you as well, which will be available to you in the PDF after the class. Now बच्चों, अब करते हैं JEE Advanced 2016. आ जाओ JEE Advanced की प्रॉब्लम पे. Come to the JEE Advanced problem. आ जाओ. प्रेम कन्ना, you can revise. बेटा, the class will be available. The class will be available on the YouTube, so you can revise it after that as well. Now, this is a JEE Advanced problem, and let's see how to solve it. अरे ग्राफ का क्लास ले चुका बेटा निशांत. You can go on YouTube and search for पुलकित ग्राफ करके ढूंढो, मिल जाएगा. I have taken lots of classes on graph transformation. You can search for my classes. हाँ, इसके ऊपर आ जाए. अब देखना. Now this is a very interesting question, very nice problem. बच्चों ये प्रॉब्लम क्या है? This is minus a to a. Now listen to me very carefully. I told you if the problem is from minus a to a, 99.9% times it is a even odd problem. अगर फंक्शन इवन और ऑड नहीं है, if the function is neither even nor odd, then the standard method in such problems, if the problem is from minus a to a, is क्या होगा बताता हूं. By the way, this is not neither even nor odd, क्योंकि अगर आप f of x देखोगे, f of x क्या है बच्चों? x square cos x upon 1 plus e की पावर x. If you do f of minus x, ये हो जाएगा x square, तो x square रहेगा, replacing x by minus x. ये हो जाएगा cos of minus x is cos x. ये हो जाएगा 1 plus e raised to power minus x, replacing x by minus x. तो ये हो जाएगा ये हो गया. सो इफ यू रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, ये आ जाएगा. बट ना तो ये f ऑफ x है, ना ही ये माइनस ऑफ एफ एक्स है. सो दिस फंक्शन इज नीदर इवन, इट इज नीदर इवन नॉर ऑड. तो ये ना तो इवन है ना ही ऑड है. इट इज नीदर इवन नॉर ऑड. अब क्या करें? अब क्या करें इसको? ठीक है, तो वैसे तो अब ऐसे क्वेश्चंस को विच इज फ्रॉम माइनस ए टू ए but neither even nor odd, in such problems use the standard substitution, replace x by minus x. Use the substitution, use this substitution and write the integration once again. बच्चों क्या करो? खुद से करो. क्या करो बच्चों? In such problems replace x by minus x and write the integration once again. क्या आएगा देखते हैं. Write the integration once again and there lies the hint. There lies the hint. क्या करना है देखना. वापस से करता हूं मैं. This I am converting I, right? I am doing x को रिप्लेस कर दिया किससे? माइनस एक्स से, which implies बच्चों dx कितना हो गया? Now माइनस dx, right? dx की जगह बच्चों कितना हो जाएगा? माइनस dx आ जाएगा, right? So वहां पे आ जाएगा माइनस dx. Replacing x by minus x, nothing changes. X square remains x square. Cos of minus x is nothing but cos x. ये हो जाएगा 1 plus e raised to power minus x. Agree? Can I write 1 plus e raised to power minus x as e raised to power minus x बच्चों कितना होता है? इतना होता है. So can I write this as 1 upon e raised to power x? वो ऊपर चला जाएगा LCM लेके. Can I write this as 1 plus e raised power x and this e raised power jumps up in the numerator, right? ये माइनस है यहाँ पे. Can I take this minus sign outside? I am taking this minus sign outside क्योंकि dx बच्चों कितना हो गया था? माइनस dx. But since I replaced x by minus x, the limits will also change. Limits change हो जाएगी. क्या हो जाएगा? जब x पुराने वाले x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू थी, if the old x was minus pi by 2, the new x, मतलब t भी रख सकते थे, you could have written it t as well. The new limit will be what? Pi by 2. और ये हो जाएगा minus pi by 2. Agree? यहाँ तक clear है? Now, yes, Aman, you are right. Aman, you are right. That is what is coming out to be in the end. अब बच्चों क्या हो जाएगा? Can I use this minus sign to interchange the limits?
यस और नो? प्रॉपर्टी, अगर आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स को इंटरचेंज करोगे, अ माइनस साइन विल कम आउटसाइड, और if there is a minus sign outside, you can use it, the limits will get interchanged. So I will eat this minus sign. What it will do, it will interchange the limit, माइनस वाली नीचे प्लस वाली ऊपर. तो ये आ गया आपका I. This was the original I, this is the new I which you have got by replacing x by minus x. समझ में आया बच्चों? ऋतिक कौशल. अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड द टू. फिर से रिपीट कर रहा हूं, द क्वेश्चंस विच आर -a to a, 99.9% problems will be even and odd problems. If the function is neither even nor odd, the standard way to do is replace x by minus x, write the integral once again. ठीक है, original integration, this integration after the substitution, replacing x by minus x, दोनों को ऐड करो. दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो क्या आएगा, बहुत सिंपल है. when you add the two, this is what you're gonna do. अच्छा, by the way, quick repetition, और इस पे बाद में आता हूँ, पहले सॉल्व करते हैं. हाँ, ओरिजिनल आई, नया वाला आई, when I add the two बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा. देखना, when you add the two क्या हो गया, ये था ओरिजिनल आई, दिस वॉज द आई विच आई गॉट बाय रिप्लेसिंग बाय द सब्सटीट्यूशन दिस, राइट. दोनों को ऐड किया, ऐड करने पे बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज पावर एक्स इज द कॉमन. ये तो कॉमन है, कहां गया, दिस थिंग एंड दिस थिंग इज कॉमन. बचेगा क्या, ई रेज पावर एक्स प्लस 1, ई रेज पावर एक्स प्लस 1, ई रेज पावर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. आपके पास बचेगा बच्चों ये, और यही तो इंटीग्रल अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने. यू कैन डू दिस इंटीग्रल यूजिंग डीआई मेथड. ये तो डीआई मेथड से किया था अभी अपन ने, याद है कि नहीं? यस, बट मैं इसको ग्राफिकली भी कर सकता हूं, करके दिखाऊं. ठीक है, तो बच्चों क्या आ गया, 2i इज दिस. This can be written as 2 times integral right. आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल. योर आंसर इज 0 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स. अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको किया था डीआई मेथड से, वी डिड इट यूजिंग डीआई मेथड. अभी मैं आपको बताऊंगा इसको ग्राफ से भी कर सकते थे. बताऊं, अभिराम दारा बेटा, उसके लिए मेरी एक बार इंटीग्रेशन की क्लास रिवाइज कर लेना, इंडेफिनिट की. आई हैव टेकन दैट. जो क्वेश्चन अभिराम दारा आपने पूछा है ना, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस कराए हैं. एनीवेज, ये तो डीआई मेथड से किया था, बट अब मैं इसको सॉल्व करता हूं. सो बेसिकली क्या हो गया, नाउ दिस वाज योर क्वेश्चन. देखना क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन था ये, दिस क्वेश्चन गॉट कन्वर्टेड इनटू दिस. अब मैं ये आपको करके दिखाता हूं ग्राफ से. मैं बाय पार्ट्स भी नहीं करता, मैं डीआई मेथड भी नहीं करता, मैं डायरेक्टली अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा. कैसे, मैं ग्राफ इमेजिन करूंगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इन बिटवीन 0 से पाई बाई 2 करें. सो लेट अस इमेजिन द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बिटवीन 0 से पाई बाई 2. अच्छा बच्चों बताओ, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स की 0 पे वैल्यू कितनी है, व्हाट इज इट्स वैल्यू एट 0, बताओ तो जरा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एट 0? 0. x 0 cos 0 is 1, 0 into 1 0. What is its value when, so एक तो 0 पे तो यहाँ पे है, what is its value at pi by 2? What is its value at pi by 2? बताओ. पाई बाई 2 का स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 2. कॉस पाई बाई 2 बच्चों कितना होता है, 0. तो ले वापिस 0 हो गया. तो ग्राफ कैसा बनेगा, सो हाउ विल द ग्राफ बी, ग्राफ कैसा बनेगा, अरे भैया ग्राफ कैसा बनेगा, ये कॉस तो खुद ही फ्रैक्शन है, कॉस हैज अ वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1. एक्स स्क्वायर बिटवीन 0 से पाई बाई 2, फॉर अ लॉट ऑफ टाइम बिटवीन 0 से पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो फ्रैक्शन. कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ तो बन जाएगा ऐसे, अप्रोक्सीमेट, इट्स अप्रोक्सीमेट, एंड इट्स वैल्यू विल बी लेस देन 1.
अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है। देवजीत चौधरी, देखो ध्यान से, ऐसा होगा। अब मैं अप्रोक्सीमेट करता हूं। मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? माय क्वेश्चन इज, देखना ध्यान से, माय क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन बिटवीन 0 से π/2। मुझे चाहिए इसका एरिया, दिस इज माय आंसर। कैन यू टेल मी अप्रोक्सीमेटली कि आंसर किस वैल्यू के आसपास या कम होगा? अगर ये पूरा रेक्टेंगल लेते, हैड आई टेकन द एंटायर रेक्टेंगल, तो बच्चा इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है? π/2। दिस एंटायर रेक्टेंगल का एरिया कितना है बच्चों? π/2। यस की दो, π/2 है। तो अपना जो इंटीग्रल है 0 से π/2, दिस द आंसर विल बी लेस देन π/2 और नॉट। सो इसका एरिया बच्चों कितना हो जाएगा? इसका एरिया बच्चों कितना हो जाएगा? लेस देन π/2। यस और नो? जैसे अमृता पांडे बोल रही है that the area of my this graph between 0 से π/2 is less than this area. Agree? तो अपना आंसर पक्के से क्या होना चाहिए? π/2 से कम होना चाहिए। लो ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ये ऑप्शंस तो वैसे रिजेक्ट हो गए, क्यों? अरे भैया x² cos x के इंटीग्रेशन में e की पावर कहां से आएगी? क्या बेवकूफी है ये? हो सकता है क्या? इन द इंटीग्रेशन ऑफ x² cos x e की पावर कहां से आ गई? कोई जादू है क्या? कोई एलियन है क्या? नहीं आएगी ना। सो ये तो ऐसे रिजेक्ट हो गए, कोई भी बता देगा। ऑफ कोर्स e रेस्ट पावर विल नेवर कम इन द इंटीग्रेशन ऑफ x² cos x, दैट इज ऑब्वियस। अब आ गए दो ऑप्शन। माय आंसर इज लेस देन π/2। माय आंसर शुड बी लेस देन π/2, ठीक है। π²/4 + 2 डेफिनेटली नॉट, क्योंकि दिस इज मच मोर देन π/2। एग्री? 2 प्लस π²/4, अरे भैया π/2 से तो बहुत ज्यादा बड़ा है। दिस इज माय आंसर। खुद ही चेक कर लो। π² कितना हो जाएगा? 9/4 कितना हो जाएगा? -2, अप्रोक्सीमेटली π/2 के आसपास पहुंच जाएगा। गॉट इट? सो दिस वाज माय, यस और नो पहले बता दो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? कुड यू गेट इट? सूरज, समर्थ, ऑसम, अभिनव, वेरी गुड। फ्रॉम मंडे, संजय प्रसन्ना, माई नेक्स्ट क्लास इज ऑन मंडे ऑन एरिया अंडर द कर्व नाउ. So what I'm going to start now, area under the curve. All these concepts will be used in area under the graph, right? और actually यही तो किया हमने. Today what did we do? Area under the graph, right? चलो बच्चों, now I'm going to give you lots of home assignments. This problem I'm leaving it to you. Let me give it to you as home assignment. Very simple. It's again minus a to a, but this is not even or odd function. बच्चों कैसे करोगे? सब्स्टिट्यूट करोगे, x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, यू विल गेट द आंसर. यू विल गेट द आंसर. गॉट इट? आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू हियर. वेरी सिंपल 2-step प्रॉब्लम. I have solved it for you, but since it's a lot of time, I am just going ahead. This is again a quick summary, bachcho. This was my surprise of the day. Vedantu, I am launching the test series for you. It's a long, exhaustive test series, and today you can get it for 1,000 rupees. The link of the test series will be there in the description. All right, you can go and check it out. Right? But now it's time. अच्छा ये रे बच्चों, this is by the way the long-term course of Vedantu. अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है, you will get the details here. This is the link. Again, it will be there in the description. But कोई बात नहीं, अब आ जाओ. Test series is what you should be more interested in today's class. ठीक है? हाँ, बट आ जाओ होम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर. होम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स नोट करो, नोट डाउन. आई वॉन्ट द आंसर्स ऑफ द होम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स इन द डिस्क्रिप्शन. Shubham, you are interested? Then you see the link in the description and get all the details. ठीक है? हाँ, नोट करो प्रॉब्लम्स. This is your problem number 1. By the way, the solution of all the problems will be there in the PDF of the class, which will be available on the Telegram group and on Vedantu's app on Play Store. हाँ, this is your problem number 1. स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो पीडीएफ में भी मिल जाएंगे. बट आई वॉन्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर द क्लास so that I can see your names who all is giving me correct answer.
द लेवल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर जेई मेन्स प्लस. ठीक है, दीज आर जेई मेन्स प्लस. अचित, यू हैव टू टेक लॉन्ग टर्म कोर्स. बेटा लॉन्ग टर्म कोर्स का डिटेल्स आपको मिल जाएगा इन द लिंक विच आई जस्ट शेयर्ड विथ यू. इट इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है बेटा, वहां से मिल जाएगा, आप ले लेना. कोई भी डाउट हो आप टीम से पूछ सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो. माई ईमेल आईडी बच्चों इज दिस. अगर किसी को मेरा ईमेल आईडी चाहिए, माई ईमेल आईडी दिस. This is my email ID pulkitsir@vedantu.com. pulkitsir@vedantu.com. ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना. एंड आगे बढ़े. सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ द डे, दिस इज योर सेकेंड प्रॉब्लम. ये भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मिल जाएगा. यू विल गेट इट ऑन द स्क्रीनशॉट. ठीक है, बट आई वॉन्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, दिस इज योर सेकेंड प्रॉब्लम. सोचना इसके बारे में. एंड this is your third problem. This is बच्चों, this is based on the summation as integration. My previous to previous class याद है. तेजस, what about the books? बेटा कोई भी बुक कर लो. If you are going to a coaching, then follow your coaching book. Else step 1 RD शर्मा subjective जो है ना बेटा, सबसे पहले RD शर्मा subjective कर लो, at least the solve examples, so that your fundamentals are clear. ठीक है, attend my class to get a knack of J level problem solving and then pick up any standard book, be it Cengage, be it Arihant. ठीक है, वो बुक को करो. Stick to one book only and also solve previous year problems. at least JEE Mains के previous year problem solve कर लो. ठीक है, this is max that you have to solve. इनके answers बेटा after the class you will get the PDF of this entire class in the Telegram group and on the Vedantu app, where answers and solutions of these problems are given. This is the last problem. The value of this minimum of mod x minus 1 mod x plus 1. ये मैंने आपको बताया था during continuity and differentiability. Remember, we did such kind of problems during continuity and differentiability. How to plot its graph. It is based on that. अगर कोई डाउट है, you can attend my continuity and differentiability की classes as well in the Vedantu JEE channel. Subscribe जरूर से कर लेना. All right. Yes, NCERT is better for board. शिवांश, अभिराम दारा, बेटा कोई भी बुक कर लो. You can do any book, be it Cengage, Arihant, any book. All books have 99% same problem, so don't worry. ठीक है, so on that note बच्चों, this is the Telegram group का link. Once again, it is there in the description box. PDF of the class will be available in the Telegram group, and this is the Vedantu app. So Vedantu app के अंदर आपको सारे PDF and assignments which I have given you are available. So download this app. ठीक है, and बच्चों, these are my all the classes of definite, but till now I have taught all the topics of 12th which are like functions, limits, continuity, differentiability, differentiation, inverse trigonometric functions, application of derivative, integration, indefinite and definite. Now we are going to start area under the curve from the next class. ठीक है, and बच्चों, as I always say, I will end my class with a big smile on your face. बच्चों, always have y equal to x square on your faces. Keep smiling, and I always say बच्चों, integrate this in your life. With time, keep integrating smiles, keep spreading happiness. हर दिन कुछ अच्छा करो. Every day do something new, something nice, right? So that you smile with satisfaction, and this smile keeps getting integrated and your life becomes happier and happier. बस यही है बच्चों success of life. Selection in IIT JEE is not success of life. Success of life is you're doing hard work happily every day and improving yourself. अब JEE में selection होगा कि नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता. If you're doing hard work, if you're happy doing that every day, improving yourself, that is the true success. On that note, I'll end my class बच्चों. See you in my next class. Hope you enjoyed learning today. If you did, do press on the like button and do subscribe so that you keep getting notifications of all my classes and all Vedantu classes. ठीक है, bye bye. See you in my next class on Monday. Bye.